Okay, so yesterday we have studied till हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? Ohm's law. Ohm's law के आगे we have already covered about resistance and resistivity. I have given you question on resistivity also, right? Yes, So have you all done that? Yes, ma'am. एक question आया है, note the question. Students on please note down the question. We are discussing the question that have came in board. Okay, so write down one question. What is meant by electrical, what is meant by resistance of a conductor? What is meant by resistance of a conductor? Student in class, please note down the question I am dictating, right? Conductor, question mark, name and define its SI unit, name and define its SI unit, full stop. List the factors on which the resistance of a conductor, list the factors on which resistance of a conductor depends, on which resistance of a conductor depends. Full stop. How is the resistance of a wire, उसी का next part है, how is the resistance of a wire affected, comma, if number one, length is doubled, number two, its radius is doubled. Radius of wire is doubled. Okay, so this question came in 3 marks, 1.5 marks for the above part and 1.5 marks for this numerical. ठीक है, CBSE 2016 का question है. Okay, you want to do it? सेकेंड पार्ट फटाफट से करो, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है उसका करो आप. फर्स्ट पार्ट भी आप करोगे, लेकिन सेकेंड पार्ट भी करिए. मैम रिपीट कर दीजिए. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, नेम एंड डिफाइन के बाद. नेम एंड डिफाइन इट्स SI यूनिट. कैन यू नेम एंड इट्स SI यूनिट? ओम. एंड हाउ इज इट रिलेटेड? लाइक ओमेगा. ठीक है, तो इसका आपको हाफ मार्क मिल गया. फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, resistance of a conductor depends on which factors? Temperature. Also length and area of cross section. Yes, length and area of cross section. ठीक है, of the wire. उसके बाद next है, how is the resistance of a wire affected if length of the wire is doubled? What will happen to the length, or what will happen to the resistance of the wire if the given length of the wire has become 2 times of its length? आपको रिलेशनशिप पता है, R is directly proportional to L. So if length is doubled, what will happen to the resistance? Also get doubled, right? Double. Very good. अगर length double हो गई है तो resistance भी क्या हो जाएगी? Double. Now if the radius of the wire is doubled, so what will happen to the क्या resistance को क्या होगा? क्या resistance के फॉर्मूले में radius आता है? थोड़ा दिमाग लगाओ, आता है. R rho times L by A होता था, where A is the area of cross section, this is the area, and this is in the form of circle, right? What is the area of a circle? Ma'am, area of circle? Yes. Pi R square. A is equals to
pi times r square. You know that the area of cross section, see it is just like a pen. ये एक वायर की तरह आप इसको देख सकते हो. तो ये जो है दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां से करंट एंटर करेगी. तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है, एक छोटा सर्कल दिख रहा है आपको, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर ही तो होगा जो रेडियस है. तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक की जगह आपको रिलेशनशिप दे दिया है पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में. तो आप एक की जगह पे क्या पुट कर सकते हो? यू कैन पुट pi r square. Now what they have given, that radius has become 2 times r. So what will you put in place of r? 2r. 2r. Right? Yes, sir. What's your name? Mayank. Mayank Verma. Mayank Singh. Okay. So see, यहां से आप देख सकते हो रो और एल से भी मतलब नहीं है हमें. पाई आर की जगह पे व्हाट यू विल डू, आप 2r प्लेस करके इसका स्क्वायर करोगे. ये चीज समझ में आ रही है? r की जगह पे आप 2r रखोगे. 2 2 जा 4r स्क्वायर. तो रेजिस्टेंस विल बिकम r इज इक्वल्स टू रो टाइम्स l अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को पीछे कर दो. पाई आर स्क्वायर तो एज इट इज था. तो रेजिस्टेंस क्या हो गई है? 1/4 हो गई है. यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला दैट रेजिस्टेंस बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस. समझ में आया? स्टूडेंट्स ऑन टीम्स, हैव यू गॉट इट? बेटा समझ में आया ये चीज? Yes, ma'am. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2. मैम 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है. दिस क्वेश्चन केम इन 5 मार्क्स. यस मैम. ओके, सी दिस क्वेश्चन हैव केम इन 5 मार्क्स इन बोर्ड. 3 मार्क्स में आपका तो ये हो गया. कौन सी हमें 16. हाँ, 2016 सीबीएसई क्वेश्चन है. 5 मार्क्स. 5 मार्क्स में आपका जो आपको सेक्शन डी आएगा उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें ये आपका कितना हो गया फिर? सी 2.5 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एंड द न्यूमेरिकल इज ऑफ 2.5 मार्क्स. आई होप यू गेट इट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस आल्सो केम इन बोर्ड. राइट डाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश between the terms electric resistance. Distinguish between the terms electrical resistance and Resistivity of a conductor. yes, and resistivity of the conductor. Okay, so you can see from here that board में आपसे definition पूछ रहे हैं. वो भी definition of electric resistance and electric resistivity. समझ रहे हो? और उसमें आपसे distinguish करने को पूछ रहा है. You have, मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी. When I was talking about resistance and resistivity, I have told you about the differences between them. ठीक है? आपको पता है resistance of wire. कल मैंने आपको बताया था एक same wire, if you remember, there was a question that there are 2 wires made of same material. It means that they are having same resistivity. But उनकी resistances क्या थे? R1 and R2 were different. Resistivity same कब होगी? When the wire is made of same kind of material. But resistance will change because resistance depend on other factors. What factors on which resistance depends? Length of the wire Length and area of cross section. ठीक है, तो इसकी तो मतलब ये अलग तरीके से वेरी करेगा. और रो किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. मटेरियल का नेचर कैसा है, वो किस चीज से बना हुआ है, उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है. सो द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 2.5 मार्क्स एंड दैट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. While in the second part there is a numerical. Second part we are having a numerical. A copper wire of resistivity, a copper wire of resistivity 1.63, a copper wire of resistivity 1.63 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Okay. So rho is given 1.63 into 10 to the power minus 8 ohm meter, has a cross section area of 10.3 into 10 to the power minus 4 centimeter square. Okay.
यहाँ तक लिख लिया? Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर, कैलकुलेट the length of the wire required, calculate the length of the wire required to make a 20 ohm coil, to make a 20 ohm coil। इसका मतलब क्या आपको और दिया हुआ है? 20 ohm coil बनाने के लिए कितना लेंथ चाहिए वायर का, और आपने एक वायर लिया है विच इज मेड ऑफ कॉपर, ठीक है। वो वायर कॉपर का बना है, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपको दे दी है इन्होंने, मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है कि वायर इतना मोटा होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है। आपसे पूछा है कि उस वायर की लेंथ कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए कि उस कॉइल की जो रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है? 20 ओम। जब भी ओम में दिया है तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस। इट इज R is also given and R is given by 20 ohm। Now which formula you will going to use? Ma'am, R is equal to Yes. Ma'am, resistance is equal to L upon You will use rho equal, sorry, R. R is equals to rho L by A। Now you can see from here, आपको R given है क्वेश्चन में, rho given है, A given है, you have to find L। पर एक चीज आप लोग क्या मुझे बता सकते हो कि इसमें एक चीज जो है क्वेश्चन में, मैम वो सेंटीमीटर उसको मीटर करते हैं। वेरी गुड, यू हैव टू मेक द यूनिट सेम। यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट मीटर में दिया हुआ है, हियर इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, और आपको पता है कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा यूनिट सेम रखनी होती है, ठीक है। अगर ग्राम्स में, किलोग्राम से आपने बहुत बार किया होगा, यूनिट कन्वर्जन तो आपने कितनी बार किया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको इसको मीटर में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? Into 10 into 100। होगी ना गलती? क्या? एक का नहीं। You have to change सेंटीमीटर टू मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर, 1/100, ठीक है। 1 आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो तो 1/100, और प्लस एक चीज देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/100 इंटू 1/100, समझ रहे हो कि नहीं? 1/100, क्योंकि एक बार सेंटीमीटर नहीं है, आप जब एक बार सेंटीमीटर से मीटर में यूनिट कन्वर्ट करते हो तो इट बिकम 1/100। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, इज इट ट्रू? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10⁻³ नहीं, सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/100 इंटू 1/100, राइट? 10⁻³ 10⁻⁴ आएगा बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/10⁻², इसको लिख सकते हो इंटू, यहाँ देखो 1/10 इंटू 1/10⁻² अपॉन 1/10⁻² लिख सकते हो। अभी 10⁻² ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2, राइट। इसको मैं अलग ही पेज पे दिखाती हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। यहाँ तक समझ में आया था? और इसको आप लिख सकते हो क्या? 1/10⁻² मीटर, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻² मीटर। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया है? सबको। एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. एनीवन? उसके बाद आपको दिया है यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एक बार तो सेंटीमीटर को चेंज नहीं करना है, 2 टाइम सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो इट मींस दैट इट बिकम 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? सेंटीमीटर से अब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहे हो तो पावर डबल कर रहे हो तो आपको 2 बार चेंज करना पड़ेगा, 1/100 इंटू 1/100। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। पहले सेंटीमीटर से मीटर हो रहा था, तो अब आप इसको क्या लिखोगे? यू विल राइट इट एज 1/10 स्क्वायर अपॉन 1/10 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 10 की पावर आप चेंज कर लेते हो। अब ये जो है इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे या आप नीचे भी अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो दिस बिकम 1/10⁻² + 2, or this become 1/10⁻⁴. Now when you take it to the numerator, what will happen to it? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ऐसे डायरेक्ट तो कर सकते हैं, जो 10⁻⁻² इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, पर मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा करके दिखाया है, ठीक है? फिर जब समझ लो एवरी सिंगल स्टेप की कैसे क्या किया है, आया समझ में? तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपको किससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻⁻⁴ से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम्स इनटू मीटर स्क्वायर. सो व्हाट आर द वैल्यूज? 1.63 into 10⁻⁸ into L. ओम मीटर. Yes, sir. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? 10.3 हाँ into 10⁻⁴ हाँ. into 10⁻⁴. वेरी गुड. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट अब ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया बिकॉज यू हैव मल्टीप्लाइड इट विद दिस नंबर Yes, sir. 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. Yes, sir. और क्या गिवन था आपको? R is रेजिस्टेंस इज 20. गिवन Resistance is given, ma'am. 20 ohm 20 and you ohm. have to find Yes. length of the coil. Length of the coil का मतलब length of the wire. आपने उसी वायर को एक फॉर्म क्या कर दिया, Solenoid. वाइंड करके कॉइल के फॉर्म में रख दिया है, बट है तो वो वायर ही, राइट? Yes, ma'am. तो अब आपको क्या करना है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है. R is equals to rho into L by A, और you can change the formula by taking L on one side. तो ये यहाँ पे चला जाएगा and this came into denominator. So this become R into A upon Rho. rho. यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Please put the values and try to find out the answer. Put the values. Students on teams, please try to put the values. Okay, one more thing. 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ कितना हो जाएगा? 10⁻⁻�8. -8. अब ये बताओ, नीचे -8 सेम पावर है, ऊपर मैं जाके कर +8, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे मैम. कैंसिल आउट. ये इतना टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है? सो व्हाट यू विल हैव? यू विल हैव L equals to 20 into 10.3 whole upon 1.63. Now can you solve it? हो जाएगा. अब तो इसको सॉल्व कर लोगे? ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आया था, ठीक है? 2.5 डिवीजन. नोट डाउन इट्स आंसर. एक ब्रैकेट में आंसर लिख लो सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप आंसर अगर निकाल लो तो निकालो फटाफट से बेटा मैं आंसर. बोल 2 मिनट. ओके, सो स्टूडेंट्स ऑन टीम्स, हैव यू अंडरस्टैंड इट? बेटा समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. कैन यू हैव यू गेट द आंसर? आंसर आया किसी का? मैं 1 2 समथिंग आ रहा है. हाँ, 1 2 समथिंग ही आएगा. मेरे पॉइंट में जा रहा है 1 2 के बाद. नो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो. Okay, just note down the answer. Try to solve it. Write down the answer. 126.38 meter. 3 मीटर. This is the length of the wire. 126.38 meter. Okay. Answer is 126.38 meter. Try to solve it. This is your answer. If your answer came same, समझ जाना करेक्ट करा है आपने, ठीक है? और अगर आप यहां तक भी कर लेते हो तो आपका हाफ मार्क्स कटेगा अगर आप आंसर नहीं निकाल पाते हो. और अगर प्रोसीजर बिल्कुल सही किया है तो यू विल गेट 2 मार्क्स एंड हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड टू नॉट ऑब्टेन द कंक्लूजन. कि आप आंसर नहीं निकाल पाए उसका हाफ मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आपने सारे स्टेप्स करेक्ट किए हैं एंड यू नो द प्रोसीजर तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 2.5. क्लियर? नाउ नोट डाउन थर्ड क्वेश्चन दैट हैव केम इन बोर्ड. फर्स्ट पार्ट है, ये भी सब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. heating elements of electrical heating devices is made up of an alloy मैं लाइक alloy आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. Mixture of metals.
मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड आप क्या करते हो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटलॉइड्स मिक्स करके मेटलर्जी। यस मेटलर्जी आपने चैप्टर पढ़ा है ना डिलीट हो गया। नीट हो गया है ओके बट यू हैव स्टडीड अबाउट एलॉयज आपने एलॉयज जरूर पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में सो नो डाउट लाइक ब्रास। ब्रास ओके ब्रास इज एन एलॉय ऑफ क्या क्या मिक्स करते हैं कॉपर ब्रास एंड कॉपर जिंक Zinc. ठीक है And थोड़ा iron. बहुत शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है Wait, बट wait. उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में डिफरेंट मेटल्स मिलाए जाते हैं आपने एल्यूमिनियम में सुना होगा जो एल्यूमिनियम बनते हैं या एल्यूमिनियम के मेटल्स बनते हैं तो उसमें भी काफी चीजें मिक्स करी जाती है तो उनके alloys होते एल्यूमिनियम हैं। निकल हाँ अच्छा ओके नो डाउन heating elements of electrical heating devices is made up of an alloy rather than a pure metal full stop give two reasons इसका आप आंसर भी लिख लो give two reasons note down the answer number 1 first question का आंसर है alloys are used Now because they do not कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। yes ma'am। नोट डाउन आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के पार्ट्स एलॉय से क्यों बनाते हो ठीक है क्योंकि क्योंकि मैम हीटिंग एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है लेकिन उतनी भी तेज जल्दी नहीं करनी है। वायर हीटअप हो जाए या Yes, ma'am. बर्न हो जाए तो उसको एक प्रॉपर कनेक्ट आप लिखो पहले भी लिखो पॉइंट्स रेजिस्टेंस देख के alloys are used for making electrical heating devices due to the following reasons number 1 they have a higher resistivity as compared to pure metals. They have higher resistivity as compared to pure metals. Number 2, they do not oxidize. आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा ना क्लास केमिस्ट्री में। Yes, They do not oxidize readily at high temperatures. अगर आप लोगों के पास घर में कर्लिंग आयरन हो या फिर आपने अप्लायंसेस देखे हुए जो कि हीट प्रोवाइड करते हैं बट दे डू नॉट जस्ट गट टू मच हीट अप और मतलब उससे आपको हीट प्रोवाइड करेंगे बट वैसा नहीं कि वो जल जाए इस तरीके से या फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर आप देखोगे जो मतलब हीटिंग डिवाइस होते हैं उसमें जो कॉपर प्लेटिंग होती है या प्रेस जो आपकी होती है अगर आपने कभी देखी हो तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होती है। इसमें जंग लगी देखी कभी प्रेस में तो जो नॉर्मल आपके यहाँ प्रेस जंग ही बोलते हैं ना उसको रस्टिंग नॉर्मली कोरोजन या रस्टिंग आप इसको बोलते हो तो वो इतना इजीली आयरन का प्रेस आपका ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता है बिकॉज दे आर नॉट मेड ऑफ प्योर मेटल दे आर एक्चुअली एलॉयज। समझ में आया दे जस्ट प्रोवाइड यू हीट बट दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज बिकॉज दे आर नॉट प्योर मेटल। समझ में आया ओके नोट डाउन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नोट इट डाउन four resistors of 4 ohm each are joined end to end. There are 4 resistors of 4 ohm. Each resistor is having a resistance of 4 ohm and they are joined end to end. मतलब कुछ इस तरीके से ज्वाइन होंगे इन सीरीज ठीक है और सबकी वैल्यू क्या है 4 ओम है। इसमें डायग्राम गिवन नहीं है क्वेश्चन में आपको सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन समझना है ठीक है। कॉमा स्क्वायर में हाँ इन द फॉर्म अच्छा लिखा है तो ठीक है नोट इट डाउन। Each joined end to end to form a square. Full stop. Calculate the equivalent resistance. Of the combination
of the combination between two adjacent corners. ठीक है, अब this is your homework. Do the second part at your homework. मतलब ये स्क्वायर तो स्क्वायर के एक इस साइड है एक इस साइड है। अब जैसे मान लो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे मान लो ये ए बी है, सी एंड डी, तो आपको इस आर्म को और प्लस ये जो बचा हुआ आर्म है इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ना तो ट्राई करना, आई विल कम एंड आई विल सॉल्व। ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस समझ नहीं आया, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस